آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم نور، آزمائش آ گیا، العلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اس میں ہم سب موجود ہیں۔ آج بھی دو ٹیمیں ہیں اور آج 7واں سلسلہ ہے۔ ایک ٹیم آج انشاءاللہ پشاور خیبر پختونخوا سے ہوگی اور ایک انشاءاللہ پنجاب کے شہر چشتیاں سے۔ دیکھنا یہ ہے دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے۔ آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے جگہ پر تشریف رکھیں۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم دائیں طرف پشاور والے ہیں، آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ نام بتائیں گے، کیا مصروفیات ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان رضا طاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد عمران طاری ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ پشاور میں درجہ خام ثانی 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاء اللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معیز علی اور والد محترم کا نام سلیم عباس ہے۔ میرا تعلق پھولوں کے شہر پشاور سے ہے اور میں پی جی سی ہدف کالج میں 2nd ایئر CS ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ، چلیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عطا اللہ ہے، میرے والد صاحب کا نام کفایت اللہ ہے، میرا تعلق پشاور سے ہے اور میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ میں نے انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں MS کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا ٹیچنگ کرتے ہیں؟ جی ٹیچنگ۔ ماشاء اللہ۔ تو استاد صاحب کا کیسے ذہن بن گیا ذہنی آزمائش کے حوالے سے؟ تو میرا ایک بھائی دعوت اسلامی میں ہیں تو انہوں نے ذہن دیا اور آپ آڈیشن میں آئے اور سلیکٹ بھی ہو گئے۔ الحمدللہ۔ آئیے نا، آپ 3 ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ٹیم میں پشاور کے، تینوں کے الگ الگ شعبے ہیں، کیسے سلیکٹ ہوئے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج آڈیشن ہے پشاور کا۔ جی ہاں، کثیر تعداد میں عاشقان رسول آڈیشن دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ کیا ولیوں کو اس میں سے کچھ لاحق ہوتا ہے؟ چونکہ خوف جو ہے نا یہ ڈر کو کہتے ہیں اور غم بھی، لیکن جو گزرے ہوئے اعمال پہ ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں، اور جو مستقبل کے لیے کوئی بات کسی بات پر افسوس ہے تو وہ خوف ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں، تیری کفش پا پر نثارا کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کشف پا پر نثارہ کروں میں۔ حاضرین و ناظرین ہو جائیں تیار سارے، حاضرین و ناظرین ہو جائیں تیار سارے، حاضرین و ناظرین۔ ماشاء اللہ۔ پشاور والے کیسے سلیکٹ ہوئے آپ نے دیکھا۔ ہماری بائیں طرف چشتیاں کے اسلامی بھائی ہیں، باری باری اپنا نام بتائیں گے، اپنی کیا مصروفیات ہیں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد یار ہے اور میرے والد محترم کا نام اللہ یار دولتانہ ہے۔ میرا تعلق لڈن ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں BS انٹرنیشنل ریلیشنز کر رہا ہوں۔ بیٹا کیسے ذہنی آزمائش کا کیسے ذہن بن گیا آپ کا؟ ایکچولی گھر میں بھی مدنی ماحول ہے اور میرے پیرنٹس اسپیشلی میرے ماموں جان ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ادھر آؤں کیونکہ وہ نگران ہیں وہاں پہ اچھا تعویذات کے۔ اللہ کی عطا تاری۔ اور آپ سلیکٹ ہو گئے ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ احمد یار بھائی، اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ طاری ہے، میرے والد صاحب کا نام عبد المجید ہے۔ میں بیسکلی فوٹاباز کا رہائشی ہوں اور میں جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف مکی مسجد میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا ہے اور میرے والد محترم کا نام محمد امیر طاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ مکی مسجد میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا بیسکلی تعلق بھی چشتیاں شریف سے ہے۔
चले जनाब, चिश्तियाँ से जो टीम सेलेक्ट हुई है उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 के ऑडिशन की टीम सफ़र करते करते आज पहुंच चुकी है पंजाब के शहर चिश्तिया शरीफ। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, दिल में खजाना हाथ लाया। ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। नमाज जनाजा फ़र्ज है या वाजिब है या सुन्नत? नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए हैं। जिसकी खातिर मर गए मुनाम रगड़ कर एरिया, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, और जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियाँ। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। क्या बात है दावत इस्लामी की, क्या बात है मदनी चैनल की। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ है मगर दावत इस्लामी से, मदनी चैनल से प्यार है। ऑडिशन में हमारे पास बहुत सारी इस तरह की डिटेल आती हैं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, दूसरे स्कूलों कॉलेज के स्टूडेंट्स, ताजरान और दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी जामियात के इस्लामी भाई, यकीनन दावत इस्लामी के शोबाजात के इस्लामी भाई ऑडिशन देने आते हैं। और कभी कभी जी तो चाहता है कि मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी हमारे मंच पे हो, लेकिन अब ये भी देखना है कि इस्लामी भाई भी ज़हीन हो, तैयारी भी वो कर सकें ताकि अपनी टीम को आगे ले जा सकें। बहरहाल मरहबा कहेंगे चिश्तियाँ वालों को भी, पेशावर वालों को भी। अब वक्त हुआ है आपको ये बताएं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। इल्म नूर है इश्क के बोल, 1500वां जश्न विरादत, फिक़ह हनफी और उसके दलाइल तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे पेशावर वालों से, शैतान का फंदा क्या है? शैतान का फंदा क्या है? जिसके सीने में सजा सीना वही पुर आ गया, फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। मोमिनो तुम बच के रहना पुरफितन ये दौरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान का फंदा दुनिया और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ है। सिर्फ वही इससे महफूज होते हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल से है। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ शैतान का फंदा है। दुनिया का माल और दुनिया की दौलत वग़ैरह सब चीज़ें शैतान का फंदा है। अल्लाह पाक और उससे ताल्लुक़ पैदा करने वाली चीज़ों के अलावा दुनिया की हर शय शैतान का फंदा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शैतान के मकासिद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान के मकासिद दरज़ैल हैं। शैतान के मकासिद में से ये है कि शैतान हमेशा हमेशा इंसान को जहन्नम में धकेलने की कोशिश करता है, उसको जुल्म व ज़्यादती का मुजस्समा बनाता है और उसे नेकी के काम से रोक कर आला दर्जात से गिरा देता है। और एक अल्टीमेट सबसे बड़ा जो उसका मकसद है, इंसान से क्या छीनना है उसने? उसका ईमान छीनता है। इंसान का ईमान छीनना, हमेशा के लिए उसे जहन्नम में धकेलने की कोशिश करना, ज़ाहिरी फिस्को फजूर में मुब्तला करना, जुल्म व ज़्यादती का मुजस्समा बनाना। नाज़रीन, ये शैतान के अल्टीमेट गोल हैं, ये उसके मकासिद हैं। अल्लाह हमें शैतान के वारों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए नमाज क्या है? कहती है दुनिया अमीर अहले सुन्नत को सलाम, और मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हज़रत को सलाम। दामन हाथ से हरगिज़ नहीं है छोड़ना, अपने ज़ीरक तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि नमाज क्या है, तो आपने फरमाया अल्लाह पाक की अल्लाह के पाक के साथ अल्लाह पाक के साथ कलाम करना और दुनिया से अपना हर ताल्लुक़ कता कर देना और अल्लाह ही को जानना। आपसे सवाल किया गया कि नमाज क्या है, तो जवाब में इरशाद फरमाया बंदे का अल्लाह पाक से इस तरह मुलाकात करना
کہ وہ اللہ پاک کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو. جواب پراپر آپ نے نہیں دیا اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. اور یہاں بڑی کمال کی بات کی ہے کہ نماز ایسے پڑھے اللہ پاک سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ پاک کے سوا کسی کو نہ جانتے. نماز پڑھتے وقت یہ خیال بن جائے کہ وہ اللہ سے گویا ملاقات کرنے جا رہا ہے. باری ہے چشتیہ والوں کی ظلم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پرنور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 ہے اپنی جان پر ظلم، یعنی کہ خود کو نیکی کے کام سے روک کر نقصان دہ برائی کا ارتکاب کرنا. نمبر 2 کسی کی جان پر ظلم، یعنی اس کا حق روک کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے اس کی حق تلفی ہو، اس کو نقصان ہو. جناب اپنی جان پر بھی ظلم ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کر کے برائیاں کر کے نیکیاں چھوڑ کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور دوسرے پر ظلم یہ ہے کہ اس کا حق اس سے روک کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے اسے نقصان ہوتا ہو. اللہ ہم سب کو اپنی جان پر ظلم کرنے سے بھی محفوظ فرمائے، دوسروں پر بھی ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. شیطان کی بات ہو رہی ہے. بتائیے شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر ڈرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شیطان حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتا ہے. کیا بات ہے سیدنا عمر فاروق کی. حدیث میں آتا ہے جس راستے پر حضرت عمر چلتے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا. جواب درست دے دیا ہے. ایمان کے اعتبار سے مومن کے کتنے درجے ہیں؟ جستجو ہے دین کا پیغام یا رب عام ہو، پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام ہو، جستجو ہے دین کا پیغام یا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کے اعتبار سے مومن کے 2 درجے ہیں، ایک ہے اعلیٰ درجہ اور ایک ہے ادنا درجہ. ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ مومن جو معرفت اور آخرت کی طلب سے دور رہتے ہیں. نمبر 2 یہ درجہ ان کاملین و واسطین کا ہے جو نہ صرف وصل کی لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں بلکہ بارگاہ الہی میں مقرب بھی ہوتے ہیں، اور ان کی قریب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہوتی ہے. وہ ہر وقت اس کی جستجو میں پڑے رہتے ہیں. جناب مومن کے ایمان کے لحاظ سے 2 درجے، ایک تو ادنا درجہ جو عام مسلمانوں کا ہے، اور ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے جو اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کا کامل درجہ نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب یہ 3 سوال تو ہو گئے ہیں، مگر اب سوال الگ سے ہیں، سلیبس سے ہٹ کر بھی ہیں، اور اس بار ہم نے کچھ اور بھی فرق ڈالا ہے. جناب باری پشاور والوں کی ہے. اب موضوع جو ہے آپ کے سامنے چلتے رہیں گے. جب آپ سٹاپ کہیں گے تو اسکرین پر جو موضوع آئے گا اس کے متعلق آپ سے سوال ہوگا. جناب اسکرین پر موضوع دکھائے جائیں اور اس کے بعد لفظ سٹاپ آپ کہیں گے تو وہ موضوع آپ کے سامنے رک جائے گا. جی چلے جناب سٹاپ ہوا ہے جنرل نالج کی طرف. پہلی بار شاید ہمارے اس سلسلے میں جنرل نالج پر سوال ہو رہا ہے. چلیں آپ کے پاس تو ایجوکیشنسٹ ہیں، ہوپ فلی جواب مل جائے گا. بتائیے جناب سب سے افضل چوپایا کون سا ہے؟ اچھا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ آپشن لے لیں یا آپ آڈینس سے مدد دے لیں. سب سے افضل چوپایا، 4 پیر والا جانور اور سب سے افضل بھی ہو. سبحان اللہ، یونیک کوسچن ہے. آپشن دیجئے جناب. بکری، گھوڑا یا اونٹ. یہ بھی تینوں بڑے یونیک ہیں. بکری ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے. ایک سواری کے کام آتا ہے، ایک دودھ کے کام آتا ہے، اور ایک غزوے میں جنگ میں بھی کام آتا ہے. جلدی کیجئے گا. گھوڑا سیکنڈ. ان کا کہنا ہے گھوڑا. بتائیے افضل چوپایا کون سا ہے؟ جناب گھوڑا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے چشتیہ والوں کی. سلیکٹ کیجئے جناب. سٹاپ کہیں گے جواب تب وہ رک جائے گا. سٹاپ آ گیا ہے قرآن پاک پر. چلے جناب کیا سوال ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر کل کتنی صورتیں ہیں؟ اب آپ چاہیں تو
ऑप्शन ले चाहे तो मदद ले ले, मदद लेंगे। मदद लेंगे। चले आप किससे मदद लेंगे? सामने इस्लाम भाई से। अच्छा, हाजरीन से, इनसे लेंगे मदद। भाई चले माइक लेकर आए। लगता है हाफिज साहब है और सूरतें पता है कुरान के पाक में अंबिया के नाम पर कितनी है? मोहम्मद अनीस अताई, जामिअतुल मदीना सहीह मदीना मुल्तान शरीफ। मुल्तान से आए हैं और चिश्तिया वालों की मदद कर रहे हैं। जी जनाब, 8 सूरतें हैं। 8 सूरतें हैं। चले जनाब बताइए, आप इनके जवाब के साथ जाएंगे? जी डन। 8 डन कर रहे हैं भाई। चले बताएं भाई, 8 सूरतें हैं कि नहीं? 8 नहीं, 6 सूरतें हैं। 6, 5 और 10 का ऑप्शन था। ये वाले भाई ने तो ऑप्शन के भी बाहर का जो है वो जवाब दे दिया है। गलती हो गई है, मददगार मदद नहीं कर सके, कोई बात नहीं, हो जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन जनाब चले जनाब, अब बारी पेशावर वालों की है। ऑप्शन दिखाइए। चलें, स्टॉप। स्टॉप में अब क्या आया है? मौजू अंबिया किराम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? ये तो आसान सवाल आ गया है, लेकिन जनाब ऑप्शन चाहे तो ले लें, मदद चाहे तो ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बगैर ऑप्शन के जवाब दिया। अगर ऑप्शन लेते तो क्या होता, जरा पहले ऑप्शन बताइए। हजरत आदम, हजरत इदरीस, हजरत नूह, इन्होंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पेशावर वाले कम बैक करते हुए फिर बारी है चिश्तिया वालों की। जनाब स्टॉप। जनरल नॉलेज पर आकर रुक गया है मामला। यहाँ भी कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो हैं, देखें कैसे जवाब देते हैं। बताइए जनाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? ऑप्शन लेंगे, अब किसी से मदद नहीं लेंगे। चले जनाब, ऑप्शन बताइए। मुल्तान, कोटरी या सक्खर बैराज? सक्खर बैराज। सक्खर बैराज इनका कहना है। क्या ये बात दुरुस्त है? बताइए जनाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज सक्खर बैराज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहां तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है, कभी इधर और कभी उधर। अब बारी यहां मौजूद हाजरीन की है। सवाल कीजिए और देखिए क्या जवाब देते हैं। जी, सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक अरब के किस खानदान से था? बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार, इसका हर एक सुभान जी जनाब। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अत्तारी है। मेरा ताल्लुक कसूर शहर से है, कुरैश। जी माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक अरब के मशहूर व मारूफ और मुअज़्ज़ज़ जो ख़ानदान है, ख़ानदान कुरैश, उससे है। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बड़ी प्यारी किताब, अब्दुल हबीब भाई आप इस किताब के बारे में भी बताएंगे। ए लोगो, ये मुफ्ती कासिम साहब की है, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। कुरान पाक की वो आयतें जिसमें अल्लाह करीम ने ए लोगों कहकर या अय्युहन नास कहकर मुखातब किया है, इन आयतों को अलग किया गया, इनका तर्जमा, इनकी तफसीर, इसमें पैगाम पढ़ने से ताल्लुक़ किताब है। वन ऑफ द यूनिक बुक फॉर कुरान पाक, ज़रूर हासिल कीजिए, चाहे तो dawatislamee.net से डाउनलोड कर लीजिए। आइए जनाब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि कुरान पाक में किसे सबसे बड़ा परहेजगार जो है कहा गया है? सबसे बड़ा परहेजगार। सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा परहेजगार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कराची से रिहायश रखता हूँ और जामिअतुल मदीना कंजुल ईमान दरिजा सानिया का तालिब इल्म हूँ। कुरान पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया गया है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जवाद हसन अतारी है। सवाल का जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बगदाद शरीफ की तस्बीह तोहफे में दी जाएगी। हमारे साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, तो इनसे भी एक सवाल चलें, इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल करें। अच्छा जी, मदनी चैनल के कोई भी 5 सिलसिलों के नाम बताएं।
5 सिलसिले जी। ये दोनों बताएंगे, दो दो। अच्छा, फिर आधा तो आधा चार बाद हो गए में, ना। बाद में आधा आधा बताएंगे। चलो मिलके बता दें मेरा नाम हुनैन है और मेरे वालिद का नाम मुस्तफ़ा मुईज़ है। जी। ज़हनी आजमाइश, मदनी मुज़ाकरा, अच्छे बच्चे खुले आम सल्ले अला कहते कहते, 5वां दोनों मिलके बता दें। ख्वाबों की ताबीर है। क्या बात है, अल्लाह करे आज आप दोनों को बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब, मदीने के ख्वाब आ जाएं। क्या बात। इंशाल्लाह इनको इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इतर तोहफे में दिया जाएगा। चले माशाल्लाह, चले दोनों बच्चों को मुबारक हो। आइए नाज़रीन, कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। अल्लाह दिता तारी लुडन्स ज़िला विहाड़ी से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आज़माइश अपनी बहारें लुटा रहा है। अल्लाह करीम आपको और पूरी ज़हनी आज़माइश की मजलिस को दीनों दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आज मेरा भांजा अहमद यार भी मंच पर मौजूद है और बाकी दोनों टीमों वाले भी हमारे भाई ही हैं। अल्लाह करीम इन सब को हक में बेहतर फैसला फरमाए और इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल का। अगली कॉल दीजिएगा। हिंद में तेलंगाना के शहर आदिलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला कितना प्यारा, ज़हनी आजमाइश सालों साल जिसका इंतज़ार रहता है। माशाल्लाह बहुत खुशी होती है देखकर। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुसूसी तौर पर अब्दुल हबीब भाई को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आए नाज़रीन, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? 8 नंबर है चिश्तिया के, 9 नंबर है पेशावर वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। सवाल करेंगे पेशावर वालों से, उन्हीं का मुंह सब तकेंगे, उस दिन जो वो करेंगे वो काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हीं का मुँह सब तकेंगे, उस दिन जो वो करेंगे वो काम होगा। दुहाई सब उनकी देते होंगे, उन्हीं का हर लब पे नाम होगा। उन्हीं का हर लब पे नाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अना लहा कह के आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में। अना लहा कह के आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज इकलौता जैसे माँ को उन्हें हर एक यूं गुलाम होगा। हाय हाय, क्या प्यारा शेर है। अजीज इकलौता जैसे माँ को, माँ को कैसा इकलौता बच्चा अजीज होता है। क़यामत के दिन क्या हाल होगा कि अना लहा, और तो अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे आका क्या करेंगे, अना लहा कहकर आसियों को वो लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज इकलौता जैसे माँ को उन्हें हर एक यूं गुलाम होगा। हर गुलाम से इतना प्यार फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हबीब की अदा, जागते सोते हो अदा। हमें रहता है इसका इंतजार, इसका हर एक मरहला
نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. کیا خوبصورت بات ہے. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا, یعنی سوتے وقت بھی جس انداز سے سنت کے مطابق سونا ہے, تو اگر غور کریں تو لفظ محمد بنتا ہے نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. جواب درست دے دیا ہے. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو نام محمدی بنے جسم میں بے نظام دو. نام خدا مرقع, نام خدا رخ حبیب. نام خدا مرقع نام خدا رخ حبیب بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو. کیا بات ہے. نبی پاک کے چہرے سے کیسا لفظ اللہ نہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نام خدا مرقع نام خدا رخ حبیب. اب کیسے بیان کر رہے ہیں؟ بینی یعنی ناک مبارک الف ہے, ہا دہن اور زلفیں دو لام ہیں. گویا لفظ اللہ چہرہ مصطفیٰ سے کیسے ظاہر ہے. جواب درست دے دیا ہے. نام خدا مرقع نام خدا رخ حبیب نام خدا مرقع نام خدا رخ حبیب بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لے. کیا بات ہے. نبی پاک کا نام لینے والا کیسے دوزخ میں جائے گا؟ تو گناہ گاروں کو یہ نسخہ مل گیا ہے کہ سرکار کا نام لیتے رہیں, درود پڑھتے رہیں, ان کی باتیں کرتے رہیں اور دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کر لیں. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے
کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک کو رب نے ایسا حسین بنایا کہ دشمن غیر مسلم بھی آتے تھے اور چہرہ دیکھ کر کہتے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک کو دیکھتے اور کلمہ پڑھ لیتے. کیا خوبصورت بات کہی کہ تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے. دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا. جناب پشاور والوں کی اب باری ہے اور اب شعر دکھایا جائے گا اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. دکھائیے جناب. اور درست بتانا ہے, لفظ ب لفظ درست بتانا ہے. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو, سنانا داستان غم تم رو کر مدینے میں. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. سنانا داستان غم میری رو رو کر مدینے میں. تینوں میں سے کون سا درست ہے؟ سیکنڈ والا. سیکنڈ والا, سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. باری ہے چشتیاں والوں کی. دکھائیے شعر. کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد, کتنا ہے پیارا پیارا میٹھے نبی کا روضہ. کتنا ہے مہکا مہکا میٹھے نبی کا روضہ. کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ. تینوں ہی بڑے پیارے ہیں مگر ایک اس میں درست ہے جو امیر اہل سنت نے لکھا ہے. اور یاد رہے کہ یہ غالباً سلیبس سے ہٹ کے شعر ہے. جلدی کیجئے گا. سیکنڈ کہہ رہے ہیں کتنا ہے مہکا مہکا میٹھے نبی کا روضہ. سچی بات ہے یہ بھی درست ہے کہ مہکا مہکا بھی ہے, لیکن جو شعر ہے وہ ہے کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ. غلطی ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. شعر سنائیے گا. کیسا پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کیسا پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد. کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ. کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ. ماشاءاللہ. چلے جناب, یہاں موجود اب اسلامی بھائیوں کی باری ہے. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. اللہ. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. محمد مقصود رضا عطاری. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں. زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ان کو ایک بڑی پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب
ये किताब इनको तोहफे ये किताब तो हर घर में होनी चाहिए। आजकल जो हालात है इसमें मालूम होना चाहिए। मजाक मजाक में दोस्तों के साथ बैठकर फजूल बातें करते हुए ऐसे ऐसे लोग जुमले कह जाते हैं। तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक, ईमानियात की अहमियत के लिहाज से ये किताब जरूर आप हासिल चाहें तो करें। मकतबतुल मदीना से इसको सिर्फ 740 रुपये हदिये पर इसको तलब कर सकते हैं, और आप चाहें तो dawatislami.net से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनाब एक और शेर सुनाइए। हाँ, समझेंगे हम नियाजी उनकी करम नवाजी। जिसके सीने में सजा सीना वही सुनो है। अरे इतने छोटे मुन्ने सुनाएंगे, क्या बात है। जी चलो ठीक है। अच्छा सीट पे खड़ा कर लिया जी, चले। जिससे हुए रवाना सरकार का मदीना। जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्तबा। मोहम्मद मुश्तबा, माशाल्लाह। समझेंगे हमने याद। समझे इंशाअल्लाह करम नवाजी जरूर होगी और जल्द होंगे रवाना सरकार की गली में। एक कॉल देते हैं, फिर इंशाअल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम इश्काक अतारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मैं आपको ये ना सुनाऊंगी। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। वाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम 1500 साल बाद आए हैं मगर उनके ख्यालात, उनके तसव्वुरात, उनकी बातें सीने में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने शेर सुना। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अरहम है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, ज़हनी आज़माइश ये बहुत अच्छा है। हमारे सारे घर वाले बहुत खुशी से इसको देख रहे हैं। इसमें से हमें काफ़ी इल्म भी हासिल हो रहा है और आगे आपने ये सवाल आज पूछे उसमें भी हमें काफ़ी इल्म हासिल हुआ। आप बहुत शुक्रिया। चलिए जरा आप देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 16 नंबर है चिश्तिया के, 19 नंबर है पेशावर के। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब बारी है पेशावर वालों की, तशरीफ लाएंगे यहाँ पर और इस बोर्ड में से कोई एक बॉक्स खोलेंगे, देखते हैं क्या बताना है और 15 नाम लेने हैं। जनाब सुभान अल्लाह, क्या है इसके अंदर? पाक के 15 नाम, मदीना पाक के 15 नाम। सुभान अल्लाह, मदीना पाक की क्या बात है। जिक्र मदीना होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। मदीना, तौबा, तय्यबा, तौयबा, अर्दुल्लाह, अर्दुल हिजरा, इकालतुल बलदान, जजीरतुल अरब और हबीबा, महबूबा और जबारा और हरम रसूल हसना, बैत रसूलिल्लाह। जरा तकरीबन जवाब पूरा कर दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। चिश्तिया वालों की बारी है। जनाब बॉक्स खोलेंगे आकर, कौन सा बॉक्स खोलेंगे? 4 नंबर खोलेंगे। जनाब बताइए 4 नंबर के अंदर क्या है? असहाबे बदर के नाम। असहाबे बदर के नाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत हमज़ा, हज़रत ज़ैद हारिसा, अबू महसन और सालिम,
चले आगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, एक नंबर आपको मिलेगा। अच्छी कोशिश की आपने। पेशावर वालों की बारी है, तशरीफ लाइए जनाब और देखते हैं जनाब कौन सा बॉक्स खोलते हैं। पता नहीं होता, कोई भी टॉपिक आ जाएगा और 1 मिनट में 15 नाम लेने हैं। बताइए 1500वां जश्न विलादत, 15 टॉपिक्स, 6 नंबर बॉक्स खोला है। 15 गज़वात के नाम। 15 गज़वात के नाम। ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे बनी मुतलक, ग़ज़वे बनी कुरैज़ा, ग़ज़वे बनी नज़ीर, ग़ज़वे बनी सुलैम, ग़ज़वे फ़तह मक्का, ग़ज़वे मोता, ग़ज़वे तोमतुल जंदल, ग़ज़वे तबूक। कितने हो गए? 12 हो गए। जल्दी करें, 3 और बता दे तो 2 नंबर ले जाएंगे। 1 नंबर तो आपका हो चुका है। ग़ज़वत रिक़ा, नाज़रीन ये हमें भी सोचना है, हमें भी गज़वात याद है कि नहीं। वक्त आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की आपने। 12 बताए, 1 नंबर आपको मिलेगा। अब बारी फिर चिश्तिया वालों की है, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि क्या इतनी सारी मालूमात हमारे पास है कि नहीं। बारी है चिश्तिया वालों की। देखिए कौन सा बॉक्स खोलते हैं और क्या नंबर निकलता है। बताइए क्या है इसमें। 15 मसाजिद मदीना। 15 मसाजिद मदीना। माइक लेंगे। मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, मस्जिद जुमा, मस्जिद गुमामा, मस्जिद नूर, मस्जिद जाबा, मस्जिद फजीह, मस्जिद सजदा, मस्जिद सजदा, मस्जिद 8, 7, 8 तक तो बिला स्टॉप सारे जाते हैं, फिर वहां जाके गाड़ी रुक जाती है। आठ मस्जिदों के नाम गालिबन ये हो गई है। चले आगे चले, आगे चले। मस्जिद किबलतैन ये भी हो गई है। 2 किबलों वाली है तो शायद आपने इसलिए 2 बार शायद कहने की कोशिश की। चले जनाब, आपने कमाल वैसे किया, एक मस्जिद का नाम ही नहीं लिया जिसकी वजह से सारी दुनिया मदीने जाती। मस्जिद नबवी तो सबसे पहले है, लेकिन बहरहाल फिर भी आपके 9-10 हुए। तशरीफ रखेंगे, 1 नंबर आपने हासिल किया। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 18 नंबर चिश्तियां, 22 नंबर हो गए पेशावर वालों के। और अब आ गया वो सेगमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, फिक़ह हनफी और उसके दलाइल। दोनों टीमों से इंशाअल्लाह 2-2 सवाल होंगे। पहला सवाल पेशावर वालों से, ज़ोहर का मुस्तहब वक्त कौन सा है? इससे मुताल्लिक इमाम आज़म हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक ज़ोहर का सही वक़्त गर्मी में ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ना चाहिए, और इस पर दलील हदीस मुबारक है। रावी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत अगर ज़्यादा हो तो ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ा करें, क्योंकि इसका सवाब ज़्यादा है। सही हदीस पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब गर्मी की शिद्दत हो तो ज़ोहर की नमाज को ठंडा करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब फ़र्ज रोज़े की नियत रात में करना ज़रूरी है, इससे मुतालिक इमाम आज़म का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक मुअय्यन रोज़ा जैसे कि रमज़ान के रोज़े और मुअय्यन दिन में रोज़े की मन्नत मानना, इसमें रात को नियत करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बेहतर यह है कि रात को नियत कर ली जाए। अगर दिन में ज़वाल से पहले कर ले तो
ٹھیک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے فرض تھا۔ بخاری شریف کی جس پاک میں ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت ایک آدمی کو حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو کہ جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ دن بھر نہ کھایا، اور جس نے نہیں کھایا وہ روزہ رکھی اس لیے کہ آج عاشوراء کا دن ہے۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے امام اعظم کا موقف سامنے آیا۔ اب باری ہے پشاور والوں کی، کیا میت کی طرف سے روزے رکھنا درست ہے یا نہیں؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک میت کی طرف سے روزے نہیں رکھے جاتے بلکہ فدیہ دیا جاتا ہے، اور اس پر دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائیں اور اس کے ہاں 1 مہینے کے روزے ہیں، اس کے بدلے ہر روزے کا مسکین کو کھانا دیا جائے گا۔ ہر روزے کے مقابلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یعنی میت کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتے بلکہ فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا ایک رات کا اعتکاف کرنا درست ہے؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایک رات کا اعتکاف نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف میں روزہ ضروری ہے۔ اس کی دلیل ترمذی شریف کی جیسے پاک ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے۔ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب یہ یاد رہے کہ ہمیں نفلی اعتکاف تو مسجد میں کرتے رہتے ہیں، مگر یہ جو سنت اعتکاف کی بات ہو رہی ہے تو وہ روزہ اس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم نے سنن کبریٰ کی حدیث سنی کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے۔ جناب بہت خوبصورت سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، پھر اسکور بورڈ دیکھنا ہے، مگر چلیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میں مفتی انعام اللہ چشتی صابری، محتمم و ناظم مدرسہ ضیاء القرآن چشتیہ صابریہ پشاور KPK سے بول رہا ہوں۔ آج کا جو پشاور کا جو مقابلہ ہے، اس میں میرا بھائی عطا اللہ بھی پشاور کی نمائندگی کر رہا ہے، اور الحمدللہ پشاور میں بہت شوق اور محبت سے ذہنی آزمائش کے تمام مقابلے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہ بھائی جان تھے ماشاءاللہ، اور مفتی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارا سلام بھی بہت بہت دیجیے گا ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیجیے۔ پیارے پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، میں محمد رمضان اتاری چشتیاں شریف تو عرض گزار ہاں۔ اج ساڈے شہر چشتیاں دی ٹیم ذہنی آزمائش دے منچ دی زینت بنی ہے۔ ذہنی آزمائش نو 17 سال ہو گئے تے پر ہر واری ایک دوجے تو ود سلسلے بندے گئے نے۔ اے بھی تواڈے تے اللہ پاک دا خصوصی کرم ہے۔ اج سپورٹ تے اسی اپنے شہر چشتیاں دی ٹیم نو کرانگے، پر پشاور واسطے بھی بخیر راگلے، اے بھی تے ساڈے ہی نے۔ اللہ سانو ذہنی آزمائش دے ذریعے مزید علم دین سکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تواڈی بڑی مہربانی، تسی سانو کال کیتا، ماشاءاللہ، اور آخر میں تسی یہ بھی کہہ دیتا کہ پشاور والوں بخیر راگلے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ تو عبدالحبیب بھائی آپ کے پرانے ویورشپ میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ 17 سلسلے ماشاءاللہ ہو گئے، 17 سال نہیں ہوئے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ذہنی آزمائش شروع میں سال میں 2 بار ہوتا تھا، تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ if I'm not wrong شاید 13 سال ہو گئے ہوں گے، پھر سالانہ ہو گیا تھا۔ تو شروع کے 2-4 بار جو وہ سلسلہ سال میں 2 بار ہوا، ہم نے اس کی تاریخ تو بتائی تھی کہ پہلا کب ہوا تھا، آج یاد نہیں ہے۔ اچھا جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا العلم نور۔ 22 نمبر ہے چشتیہ کے، 26 نمبر ہیں پشاور والوں کے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاش کیجئے۔ جناب آج ہم نے تلاش کو تلاش گمشدہ بنایا ہے، تھوڑا سا مشکل کیا ہے۔ آئیے پشاور کے اسلام میں تشریف لائیں، مارکر ہاتھ میں لیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا تلاش کرنا ہے۔ ویسے تو پھولوں کا شہر ہے، ہم آپ سے اس میں سے پھول تلاش نہیں کروائیں گے۔ آپ نے بقی، جنت البقی جو قبرستان ہے، اس میں لفظ بقی کو تلاش کرنا ہے۔ با، قاف، یا اور عین۔ کراس میں بھی دیکھیں، سیدھا بھی دیکھیں، رائٹ بھی دیکھیں۔ میں نے تو ڈھونڈ لیا ہے، اب آپ دیکھیں ڈھونڈ پاتے ہیں کہ نہیں۔ جناب انہوں نے بھی ڈھونڈ لیا ہے۔
देखिए जनाब नाजरीन किस तरह ढूंढा है, बा काफ या और आइन। ये जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है, खुदा की कसम ये वो कब्रिस्तान है जिसको देखकर मरने को जी चाहता है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए माशाअल्लाह। चले जनाब बारी चिश्तियां वालों की है, मारकर अपने हाथ में लेंगे और जिस तरह बकी इन्होंने ढूंढा है, मक्के का कब्रिस्तान जन्नतुल माला, वो आप तलाश करेंगे। जन्नत सिर्फ माला लफ्ज है, मीम आइन लाम या, माला। जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश। क्या बात है, इन्होंने भी तलाश कर लिया है माला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया जनाब। अच्छा, जन्नतुल माला में एक अजीम सहाबिया का मज़ार है, कौन बताएगा? चले चले मदनी मुन्ने बताएं तो और अच्छी बात है। चलें देखें भाई, जन्नतुल माला में किस अजीम सहाबिया का मज़ार है? यहाँ मुन्नों ने हाथ उठाया है, मुन्ना बता देंगे। चलें पीछे जाएं माइक के पास। जी बड़ी बात है अगर ये जवाब दे दें। जी हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा। हजरत आयशा नहीं, जन्नतुल माला में। जन्नतुल माला मक्के में है ना, तो बहुत अजीम सहाबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़मान बलूचिस्तान से हज़रत खदीजा रदी अल्लाह। हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बगदाद शरीफ की तस्बीह तोहफे में दी जाएगी माशाअल्लाह। पेशावर से टीम चेंज, बंदा चेंज करे, इस्लामी भाई तब्दील हो। और अब आपने अरफात ढूंढना है, अरफात। अल्लाह अरफात की हाजिरी भी नसीब फरमाए। अरफात तलाश कीजिए। चले जनाब, वक्त आपका पूरा हो गया है, अरफात नहीं मिला है। चले चिश्तिया, चिश्तिया के इस्लामी भाई आइए और मिना तलाश करें। ये लीजिए मिना, मीम नून और या पर लफ्ज मिना। मिना जी जल्दी करें जी, सही ढूंढ लिया है भाई, शाबाश। अल्लाह आपको मिना की हाजिरी अता फरमाए। चिश्तिया वालों को नंबर की जरूरत थी, चिश्तिया वालों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ इस्लामी भाइयों की बारी है। अरफात कौन बताएगा? आजा जल्दी, आजा जल्दी, आजा आगे आजा। आप ये अरफात तलाश करें, हम नात ख्वां से अरफात वाला शेर सुनते हैं। अरफात और मिना दोनों का कोई शेर सुना दे भाई। चले आ जाए। पहले ही लगता है वहाँ बैठे बैठे ढूंढ लिया था, आते ही इन्होंने लकीर खींच दी है। अब देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने बताया भी था ना कि इस बार हम थोड़ा टफ कर रहे हैं। अरफात जो है माशाल्लाह, अल्लाह आपको अरफात की हाजिरी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया, तोहफा भी दीजिए, शेर भी सुनते हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 26 नंबर है चिश्तिया के, 28 नंबर है पेशावर वालों के। आइए कॉल सुनते हैं। जानिए मैच प्रोग्राम देखकर हमारे इल्म में बहुत इजाफा होता है। अल्लाह पाक दोनों टीमों और अब्दुल हबीब भाई को नजर बद से बचाए।
جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. آئیے جناب، وقت ہوا ہے انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ کریں گے، نعت خوانی کریں گے اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں جائزہ کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کھول لیجئے، رسائل نکال لیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں بعد جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات بعد ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق کو چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف کا. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। इसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, किसके। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का वो शानदार कलाम है कि जिसमें सैयदी आला हजरत ने कयामत का जो नक्शा है एक बड़े कमाल अंदाज में, इश्क वाले अंदाज में खींचा है कि क़यामत के दिन क्या क्या मुश्किलात होंगी, गुनाहगार को किस तरह मुश्किलात का सामना होगा। मगर अगर वो आशिक रसूल हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम का उम्मती हुआ, तो बेशक मुश्किलें हों भी, तो नबी पाक की जब शफाअत होगी तो मेरे आका उसे कैसे फरिश्तों से छुड़ाकर जन्नत में ले जाएंगे। बहुत खूबसूरत नक्शा है। अगर आप इस कलाम के साथ रहेंगे और इस तसव्वुर में रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक से मोहब्बत में भी इजाफा होगा, आखिरत की तैयारी करने का भी जहन बनेगा। अल्लाह करीम हमें नबी पाक की शफाअत से बरोज़े महशर बहरामंद फरमाए। किसके जलवे की झलक है उजाला क्या है, किसके जलवे की झलक है उजाला क्या है, हर तरफ दीदार है क्या है, मांग मन मानती मुँह मांगे मुरादे मांग मन मानती मुँह मांगे मुरादे लेगा। मांगता से ये कहना क्या है, नया ना है न मांगता से ये कहना है, हमने उनके वो गे तेरे तो हुए हम तेरे, इस बढ़कर तेरी सौरे वसीला क्या है, उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा, यूं न फरमा कि तेरा रहम। बात की है या अल्लाह उनकी उम्मत में मुझे बनाया है और उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है। ए अल्लाह जब मैं उनका उम्मती, उनका गुलाम, तो फिर ये ना फरमा कि तेरा रहमत में हिस्सा क्या है। ए अल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन के सदके अपनी रहमत में हमें हिस्सा अता फरमा और कयामत की मुश्किलों से हम सबको बचा ले। उनकी उम्मत में बनाया रहमत भेजा, यूं न फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है, फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है, सदका प्यारे की हया मुझे से बख्श पे पूछे न जाए तो जाना क्या है, साहिब का मैं गुनहगार वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है, बेबसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है, काश फरियाद मेरी सुन के फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो क्या शोर है, होगा क्या है, आफत ज़दा है
کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ ملا بریلی جمیلی، کیوں کہ بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کے سیگے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، جو ملائک کرے جو ملائک کرے معروض کے مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے، سامنا کہر کہے دفتر اعمال ہے پہ رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شغا رحم میں وقفہ کیا ہے، کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بغیر کرم جوش میں آئے، ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، اس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اردو میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، تو وہ آیا میرا میرے لوگوں 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 آیا میرا آتا تو بس ان کے آنے کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، لوگوں آیا میرا میرے لوگوں آیا میرا حامی، وسعت دیے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جگہ آگا کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر ملیشیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں آیا میرا حامی، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ
मुर्शिद कयामत की ताब माना के कयामत ही होगी हम उनके गए घबराए क्यों क्या हम पे नबी का साया नहीं नजर आए के अच्छे आमाल के अच्छे हम बदों पे लिए काफी है भरोसा तेरा लो आया मेरा लो आया मेरा मगर जिसका तुम्हारा कहेगा मन मुझे ले लो बनागे बेकसा तुम हो लो आया मेरा लो आया मेरा हकीकत ये न बेकस हूँ बेबस हूँ ना मैं सद से जाऊं मुझ कमजोर के ताबो तवा तुमको हमें उम्मीद है रोज़े क़यामत उनकी रहमत से फरमाए इधर आओ ना मायूस ज़ुना तुम हो लो आया मेरा देखेंगे सब के सामने कर उनका दामन मचल जाएगा आया मेरा आया मेरा
रोज़े महशर बवक्त पुरसी मुझे जो देखा फरिश्ते बोले इधर खड़े कर रहे हो तुम क्या, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। लोगों आया मेरा गाम, लोगों आया मेरा गाम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, बगल में ज़बा तुम्हारे लिए, बगल में गजा तुम्हारे लिए, हमारे गवाह तुम्हारे लिए, उनके भी बगाह तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीह हो सभी से कहीं भी बनी बेखबरी के फल की पीरी कगा से तुम्हारे लिए। लोगों आया मेरा गाम, लोगों आया मेरा गाम, लोगों आया मेरा गाम, लोगों मेरा हामी मेरा गम खारे उमम आ गई जा तन पे जामे ये आना क्या है, फिर मुझे दामने दस में छुपाने से हुजूर अपने दामने अक़दस में छुपाए तो फिर क्या हो, फिर तो ढूंढा करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, फिर मुझे दामने अक़दस में छुपाने से और फरमाए तो इस पे तकाज़ा क्या है, बंदा आज़ाद शुदा हमारे दरगाह कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है, छोड़ कर मुझको फरिश्ते कहे हम हुक्म वाला की न तामील हो सोगरा क्या है, ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बदूर हो क्या शान है, रुतबा क्या है, सदके इस रहम के इस साए दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है, रज़ा जाने आना दिल तेरे नगमों तेरे साथ है, रज़ा जाने आना दिल तेरे नगमों तेरे साथ, बुलबुले मदीना तेरा कहना क्या है, उनके सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए गए, बुलबुले मदीना तेरा कहना क्या है, बुलबुले मदीना तेरा कहना क्या है, रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम है। अल्लाह करीम हम सबको क़यामत के दिन नबी पाक का दीदार भी नसीब फरमाए, कुर्ब भी नसीब फरमाए, उनकी शफात भी नसीब फरमाए और उनके पीछे पीछे जन्नत में जाना भी नसीब फरमाए। नाज़रीन वक्त हुआ एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे और मुकाबले को लेकर आगे चलेंगे। और भले धूम सारे जग में सुन्नत की मचाने के लिए जनाब अभी तक पेशावर वाले आगे हैं, 26 नंबर चिश्तियां के हैं, 28 नंबर पेशावर वाले के हैं, मगर ये दो सेगमेंट बाज़ औक़ात पलटा खा जाता है मुकाबला। बारी है खूबसूरत सेगमेंट कुरान की बरकतें लेते हुए कुरानी मालूमात।
जनाब कुरानी मालूमात सेगमेंट में पेशावर वालों से सवाल करेंगे। अव्वलन कुरान करीम की तकसीम कितने तरीकों पर हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की तकसीम अहद रिसालत में दो एतबार से हुई, एक मंजिल के एतबार से और एक सूरतों के एतबार से। मंजिल के एतबार से इसलिए कि 7 पढ़ने वाला 7 दिन में कुरान पाक ख़त्म फरमाए, और सूरतों के एतबार से इस तरह के पढ़ने वाला 1 माह में कुरान पाक अदा फरमाए। 30 सूरतें या 30 पारे? 30 पारे। जी जनाब, 2 तकसीमें हुई, 30 पारों के लिहाज से, 7 मंजिलों के लिहाज से। कैसे मुबारक लोग थे, 7 दिन में कुरान पढ़ लेते थे, 30 दिन में कुरान पढ़ लेते थे, और आज पूरा पूरा साल गुजर जाता है, लोग कुरान नहीं पढ़ते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान करीम पर नुक्ते एराब, हरकात व सकनात किसने लगाए? नुक्ते एराब, हरकात व सकनात किसने लगाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर नुक्ते और एराब ये मशहूर ये है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने मरवान बिन अब्दुल मलिक के हुक्म पर लगवाए, और एक कौल ये है कि हज़रत अबू अल असवद दुइली ताबई ने 69 हिजरी में लगाए। जनाब हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से ये काम करवाया। एक रिवायत में ये आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक पर मद और वक्फ की अलामात किसने लगाई? नाज़रीन याद रहे कि नबी पाक के दौर में, सहाबा के दौर में कुरान करीम पर नुक्ते एराब, हरकात व सकनात नहीं थे। ये सब बाद में हुआ और बाद में पढ़ने वालों की आसानी के लिए हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में मद और वक्फ की अलामात खलील बिन अहमद फ़राइदी ने लगाई। खलील इब्ने अहमद फराईदी ने लगाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान करीम पर रुब, निस्फ, सलासा और रुकू के निशानात कब लगाए गए? कितनी यूनिक मालूमात है। कुरान में हमें पाव के बाद रुबा, जनाब निस्फ, सलासा आता है, और इसी तरह रुकू के जो नंबर्स होते हैं कि कब रुकू कंप्लीट हुआ, ये कब लगाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में रुब, सुलासा और ये रकू, ये जो मामून अब्बासी के दौर में लगवाए गए, और रकू की मिकदार ये रखी गई कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जितना कुरान मजीद पढ़कर रकू में जाते थे, रकू की उतनी मिकदार रखी गई। और जो हाशिया में जो आइन लिखा जाता है ये रकू का लिखा जाता है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये आइन हज़रत उस्मान का है और हज़रत अमर का है। जी ये जो आइन है, ये एक कॉल ये भी है कि हज़रत उस्मान के नाम के आइन की वजह से, देखें ये कितनी नई बात पता चली है। लेकिन सही लफ्ज़ ये है, सही ये है कि ये रुकू का आइन है, और ये हज़रत उस्मान तरावी में 1 रकत में जितना कुरान तिलावत करते थे उसको रुकू करार दे दिया गया। कैसे लोग थे, कुरान के कैसे आलिम थे, और सुभान अल्लाह ये कितना खूबसूरत निज़ाम आगे बढ़ता चला गया। यहाँ एक और बात भी नाज़रीन सीखने को मिलती है कि कुछ लोग ये कहा करते हैं कि जनाब आप ये काम करते हैं तो ये प्यारे आका के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था, आप बाद में कैसे कर सकते हैं? तो ये तो बिदत हो गई। तो जनाब बिदअत की 2 किस्में हैं, एक बिदत बुरी बिदत होती है, एक बिदत अच्छी बिदत होती है। अब देखिए जितनी बातें हमने की हैं कि कुरान करीम में ना हरकात थी, ना ज़बर ज़ेर पेश था, ना नुक्ते थे, ना रुकू था, ना रुबो था, ना सुलासा था, ये सब बाद में हुआ। लेकिन ये अच्छा काम था, अच्छी बिदत थी कि बाद में आने वालों के लिए आसानी हो गई। तो ये बात वाज़े हो गई कि अगर मुसलमानों की आसानी के लिए या दीन का काम फैलाने के लिए कोई अच्छी चीज़ का इजाफा किया जाए जो शरीयत से टकराती ना हो, तो ये बिदअत ज़रूर है, मगर ये बिदअत हसना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों में हो रही है, पीछे भी हुई है और आइंदा भी होती रहेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आखिरी सेगमेंट जाने से पहले 1-2 कॉल लेते हैं और फिर आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अब्दुल हबीब भाई जो प्रोग्राम करते हैं और जो इनके जो बोलते हैं मीठी मीठी जबान में बोलते हैं, मैं प्रोग्राम सुन के बहुत मुतासिर हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। आप दुआ भी किया करें, अल्लाह मुझे इखलास भी दे और अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मोज़म्बिक अफ्रीका से कामरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश सीजन 12 में पेशावर की टीम की नुमाइंदगी का मौका मिला था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर की टीम में मेरे भतीजे हसन रजा शामिल हैं जो कि जामिअतुल मदीना पेशावर के स्टूडेंट भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा दावत इस्लामी की ये खासियत है कि न सिर्फ अपने जामिअतुल मदीना के स्टूडेंट्स को बल्कि दीगर आशिकान रसूल के इदारों से भी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी, जहाँ पे भी टैलेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह उनको उजागर किया जाता है, टीम में शमूलियत का मौका मिलता है। माशाअल्लाह। चले जनाब,
मोज़म्बिक पहुंच गए सीजन 12 शिरकत करके। अब देखें हसन भाई मदीने पहुंचते हैं कि नहीं। दुआ करें अल्लाह इनको और हम सबको मदीना दिखाए। नाज़रीन आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं। रहता है इसका इंतजार, एक मरहला भी किस कदर है। 30 नंबर है चिश्तियां के, 32 नंबर है पेशावर के। आखिरी सेगमेंट फैसला कर देगा चिश्तियां या पेशावर। सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। दोनों तरफ के इस्लामी भाई एक दूसरे की टीम में जाएंगे और इसलिए जाएंगे कि सफर अकेले हो सके, दरमियान में खड़े रहेंगे कि मशवरा ना हो सके। अब बारी है पेशावर वालों की। दोनों टीमें सिर्फ सही कहेंगे और गलत कहेंगे। हसन भाई से सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। मस्जिद जहराना से एहराम बांधने के अवाम को लोग बड़ा उम्रा कहते हैं। सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला है। सही। सूरह इखलास को सूरह शाफिया भी कहा जाता है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के सगे भाई हैं। सही। आखिरी में इन्होंने मिस्टेक कर ली है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल के सगे भाई हैं, ये बात गलत है। अच्छा जनाब 4 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब बारी है अहमद यार भाई की। चिश्तियां से ताल्लुक है। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला का मजार यमन में नहीं है। सही। काबे की छत पर जो परनाला है उसे मुल्तजम कहते हैं। गलत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला का मजार मुबारक फलस्तीन में है। गलत। तयम्मुम के 4 फराइज नहीं है। सही। पतोकी को फूलों का शहर कहा जाता है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है जनाब। मुकाबला और करीब आ गया है। अब बारी फिर पेशावर वालों की। अताउल्लाह साहब से सवाल होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे। गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तारीख मिसाल 26 सफर शरीफ है। गलत। जो साहिब शान काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत नहीं होती। सही। मछली के अंडे खाना जायज है। जल्दी करें। गलत। इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद का नाम नोमान है। सही। जनाब इमाम आजम के वालिद का नाम साबित है और कभी मौका मिला तो हम आपको मछली के अंडे खिलाएंगे क्योंकि वो जायज है। आपसे 2 गलतियां हो गई हैं। तो अब बारी है हसन रजा साहब की। मौका है चिश्तियां को फिर मुकाबले में वापस आने का। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी शहजादी का नाम ज़ैनब है। सही। हजरत हसन बिन साबित शायर रसूल हैं। सही। यारे गार हजरत उमर फारूक को नहीं कहा जाता। सही। मस्जिद कुबा मदीने में है। सही। हज माह जुल्हिज्जा में अदा किया जाता है। सही। जनाब एक गलती आप कर गए हैं कि जनाब सरकार अलैहिस्सलाम की छोटी शहजादी का नाम ज़ैनब है, ये बात गलत थी। अब जनाब इसका मतलब ये हुआ मुकाबला बराबर हो गया है। अल्लाह ये ज़हनी आजमाइश कितनी बार हमारी दिलों की धड़कन तेज करेगा। जनाब अब 2 इस्लामी भाई रह गए हैं और जो फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम जो है वो आगे जा रही है। बारी है मुईज अली पेशावर से। जनाब आयतल कुर्सी एक मुकम्मल सूरत है। गलत। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का एक लक़ब अतीक है। गलत। खतीब के लिए खुतबा देते वक्त काबे को पीठ करना सुन्नत है। सही। हजरत आयशा हजरत उमर बिन खत्ताब की साहबजादी नहीं थी। सही। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत हासिल है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल जनाब पेशावर वालों ने अब तक के लिए अपनी सीट तो महफूज कर ली है। ये कम से कम यहां से हार नहीं सकते। अब अगर एक भी गलती चिश्तिया वाले करते हैं तो चिश्तिया वाले पीछे रह जाएंगे। जनाब अब बारी है हमारे चिश्तिया के मोहम्मद अब्दुल्ला की। अब देखना यह है कि उनसे क्या सवाल होंगे और ये क्या जवाब देंगे। जनाब हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिजाई वालिदा हैं। सही। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला की कुनियत उम्मे सलिमा है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजरत आयशा को प्यार से हुमैरा कहकर पुकारा करते थे। सही। ज़बूर शरीफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सही। नाजरीन आपको मालूम है क्या हुआ है? इन्होंने 5 में से 4 सही जवाब दिए हैं। आज का मुकाबला पेशावर वाले जीत गए हैं। बड़ी प्यारी कोशिश की चिश्तिया वालों ने। कई नंबर का फर्क था और आखिर में बराबर भी हो गए, लेकिन पेशावर वालों ने कमाल किया, आगे निकल गए हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। आज
सभी इस्लामी भाइयों ने बड़ा कमाल किया, मगर मेरा ख्याल है पेशावर के मुइज़ भाई बड़ी जबरदस्त, इन्होंने आखिर में 5 सवाब सही देकर अपनी टीम को किनारे लगाया। बाकी पूरी टीम, सारी टीमें बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। आइए आपको फाइनल स्कोर बोर्ड दिखाते हैं किस तरह मुकाबला चलते चलते यहां तक पहुंचा। और जनाब 1 नंबर के फर्क से चिश्तिया वाले 43 और 44 नंबर पेशावर के। हालांकि चिश्तिया ने आखिरी सेगमेंट में 13 नंबर हासिल किए। ये बड़ी कमाल की बात है कि लास्ट सेगमेंट में चिश्तिया ने पेशावर से 1 नंबर ज्यादा लिया, लेकिन चूंकि पीछे नंबर कम थे इसलिए पेशावर वाले अपनी सीट सिक्योर कर गए। अब वक्त हुआ है नाजरीन, बड़ा गिफ्ट किसको चाहिए? क्या बात है, चले देखें, कुरानदाजी कर लेते हैं इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, देखें किसका नाम आता है। मारफतुल कुरान, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमाए कुरान आप घर ले जाएं, घर पे हासिल करें, पढ़ने में कुरान आसान हो जाता है। 5173 आ जाए भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले आप बच्चों की कुरानदाजी। 5116 आ जाए, आप भी आ जाए माशाअल्लाह, तोहफा ले लें माशाअल्लाह, क्या बात है। चले माशाअल्लाह, अब पढ़ना है इसको, ठीक है पूरा इंशाअल्लाह। कुरान पाक लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़े भी, अपने घर वालों को भी पढ़ाएं, इसकी बरकतें लूटें। क्या करते हैं आप? माशाअल्लाह मदरसा पढ़ाते हैं। चले भाई, कारी साहब को मिल गया कुरान पाक, ये तो बड़ा अच्छा हो गया माशाअल्लाह। चले जरा अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए माशाअल्लाह, ये आपका तोहफा। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम। यासीन ताहा तेरे ही नाम, यासीन ताहा तेरे ही नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। सबको मुयस्सर हो ये मकाम, पहुँचे मदीने बन गए गुलाम। पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम, पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। लाखों दुरूद और लाखों सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम। तेरी सना है मेरा नसीब, कुर्बान तुझ पर जाने अदीब। तुझ पर तसद्दुक़ आलम तमाम, तुझ पर तसद्दुक़ आलम तमाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। लाखों दुरूद और लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन
والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پھر ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. العلم نور